Hello student, all my dear student. Today we are going to discuss the second term syllabus. We all know that CBSE has not declared the first term result, but still we have to do preparation. So in this video we will get to know about the language and literature syllabus and the criteria and the weightage of all the sections of literature. As we know that the Central Board of Secondary Education will be conduct two second term exam in March or April, but it is not clear yet. It has just announced कि last March और April 1st में exam होंगे, but still we are expecting that exam will be carry on in May month or the last April. For the second term exam, student will have to prepare the syllabus remaining after first term. It means the chapters that we have finished in first term, they will not be repeat. And after that the chapter जो 50% syllabus is remaining, that will become in your second term exam. So CBSE has provided here syllabus, and now we are watching out the syllabus of English. So English, the whole lesson will be, the whole paper will be divided into 4 parts: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर एंड लिटरेचर, जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम दिया है. सो सी हियर, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है from where you can get full syllabus of all the subject. CBSE academic .nic. Right student? And now come on the English literature syllabus. How will be the weightage? कैसा weightage होगा, कितने marks का होगा पेपर? तो as we know that English paper will be divided into 4 parts. Reading section 10 marks, writing and grammar. It means writing 5 marks and grammar section will be of 5 marks. तो ये हो गया 10 marks का. Literature 20. As like a first term, literature weightage सबसे ज़्यादा होता है 20 marks का, because हम जानते हैं कि इसमें 2 बुक आती हैं, यानी कि टोटल होता है इसका 40. अब क्वेश्चन पेपर यानी कि हमारा 50 का होगा, तो 10 मार्क्स विल बी गिवन बाय इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 40 मार्क्स का आपको पेपर देना होगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा. एंड आई वॉन्टेड टू बी फोकस इट दैट फर्स्ट टर्म में आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर दिए थे, बट इन सेकेंड टर्म यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर, एंड आंसर मे बी इन द डिफरेंट फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव टाइप का आएगा, तो वो आपको फोकस करना होगा. ध्यान रखिए. रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन में there will be 2 kinds of reading section. It means 2 passages. First passage, inferences, evaluation, vocabulary, analysis and interpretation. यानी कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और ये जो फर्स्ट पैसेज होगा दैट विल बी ऑफ 400 to 450 वर्ड्स, एंड द सेकेंड पैसेज विल बी ऑफ फैक्चुअल पैसेज. ये देयर विल बी सम डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन, लाइक विजुअल इनपुट्स हो सकते हैं, सम पिक्चर्स यू विल सी इन द क्वेश्चन पेपर, स्टैटिकल डाटा हो सकता है, चार्ट हो सकता है, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 300 to 350 वर्ड्स. वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट द क्वेश्चन मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, but still it is not clear. So student, you have to prepare for the descriptive questions or the objective. राइट, अपना माइंड मेकअप करके रखें, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाएं, बट यू हैव टू डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क. और एक और बात होती है कि अगर रीडिंग सेक्शन में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारे आगे भी सारे सेक्शन में अच्छी स्कोरिंग होती है. फिर इसके बाद आता है राइटिंग स्किल. इन राइटिंग स्किल फर्स्ट टर्म में हमने लेटर टू एडिटर पढ़ा और एनालिटिकल पैराग्राफ, बट इन सेकेंड टर्म we have 2 kinds of letter of order and letter of inquiry. And second, यानी कि ये 5 marks का आपका writing section will have 5 marks, and for 5 marks there will be choice. It means one of the question you have to attempt.
एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट एटसेट्रा, इनमें से किसी भी टाइप का आ सकता है। ठीक, तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल पैराग्राफ इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, तो यहाँ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी दे आर वेरी सिंपल, बट आप पढ़ेंगे तभी आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक दोनों न्यू चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर। ग्रामर जस्ट लाइक द सेम ऑफ फर्स्ट टर्म, मॉडल्स, टेंस, subject verb concord, determiners, reported speech, commands and request, statements and questions. ये हमारा वही सिलेबस है जो फर्स्ट टर्म में था, तो यहाँ आपको रिवीजन करना है। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट आपके टीचर्स ने करा ही दिया होगा। फिर आते हैं हम लिटरेचर। लिटरेचर में देयर में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस होंगे, टेक्स्ट टू एसेस इंटरप्रिटेशन, short answers, interferences, extrapolations beyond the text and across the text. It means in literature part you have to be read the chapter well. There may be different kinds of question, and the question may be in the form of extract, short question, very short question or long form. First flight, these the नेम ऑफ योर बुक विच आर गिवन इन द सिलेबस। जो चैप्टर्स हमने अपने फर्स्ट टर्म में फिनिश किए हैं दे विल नॉट रिपीट अगेन। और आगे के चैप्टर्स हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट फ्लाइट बुक। इट हैज़ 3 पार्ट। मैडम राइट्स द बर्ड्स इज अ नेक्स्ट चैप्टर, द सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल, यानी कि 4 चैप्टर्स आर कमिंग इन योर सेकेंड टर्म। एंड वी टॉक अबाउट पोएम्स, अमंडा, animals, the tale of Custard the dragon. These 3 poems are coming, right student? And now come on the footprints without feet. In footprints without feet there are 4 chapters: the making of a scientist, the necklace, the hague driver and Boli. तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये हमारे लिटरेचर में चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इसका वेटेज भी 20 है, तो हमें लिटरेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। ऑल पार्ट्स आर वेरी इजी इफ़ यू डू हार्ड वर्क। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये जल्दी कवर हो जाएगा। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आप CBSE वेबसाइट पर जा कर के सैम्पल पेपर्स क्लियर हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।